یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی، وہ بالکل سچ تھا۔ اکرم کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کاش یہ سب جھوٹ ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ سفید کپڑوں والا بوڑھا آدمی سامنے ہی کھڑا تھا، لیکن اچانک سے وہ غائب ہو گیا۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا، وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا؟ کہیں یہی آدمی تو سارے انسان نہیں کھاتا؟ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے، دونوں پسینے سے شرابور ہو رہے تھے۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ کیسی دنیا میں پہنچ چکے تھے؟ آصف اور اکرم بھاگتے ہوئے اس قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے کیونکہ اس قبرستان کا کوئی بھی دروازہ نہیں تھا، چاروں طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے تھک کر رک گئے، پھر انہیں کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ آواز قریب ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں نے جب پیچھے دیکھا تو جیسے دھماکہ ہوا، ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، لیکن بہت کچھ ہو گیا۔ سامنے ایک خوفناک قبر پھٹی، اس میں سے ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، اس کے پاس ایک بڑے سفید دانتوں والی بوڑھی عورت اس مردے کا خون پی رہی تھی۔ اکرم کو لگا اچانک اس کے دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس نے بے ساختہ آصف کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ خود رو رہا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، رات کے شاید 2 بج رہے تھے۔ انہیں پاس سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دونوں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا رکھے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی اور کیوں رو رہی تھی؟ ان سب باتوں میں اب اکرم اور آصف کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں تیز ہونے لگیں۔ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کون ہے میرا تیرے بعد؟ اب میں اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں گی؟ وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے یہ باتیں کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر آصف کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ شاید وہ بھی ان دونوں کی طرح کوئی مسافر ہو، شاید وہ بھی یہاں آ کر پھنس گئی ہو۔ کون ہیں آپ اور اس قبر پر بیٹھ کر کیوں رو رہی ہیں؟ آصف نے اس کے قریب جا کر پیار سے پوچھا تو اس بوڑھی عورت نے اپنی کوئی درد بھری کہانی سنائی۔ پھر آصف اور اکرم کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت آگے آگے چلنے لگی اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ دوستو اچانک سے پاس ہی ایک قبر پھٹی، وہ عورت وہیں رک گئی۔ اس بوڑھی عورت نے بتایا یہاں سے باہر جانے کا راستہ اس قبر کے اندر سے ہو کر جاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت قبر میں داخل ہو گئی، وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں چلے گئے۔ اچانک اکرم کی نظر اس عورت کے پاؤں پر پڑی۔ اس کے تو جسم کا خون ہی خشک ہو گیا، اس عورت کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ کوئی انسان نہیں بلکہ چڑیل تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے وہ بھاگے، انہیں پیچھے اس عورت کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ 1 منٹ گاڑی روکو یار، میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پر لگے پانی کے نل سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہو رہا تھا، میرا بھی گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے گاڑی میں بیٹھے سنا رہا تھا۔ میں نے تجسس سے ایک بار پھر سے احمد کو وہ واقعہ سنانے کو کہا تو وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ دونوں لڑکے وہاں سے بھاگ کر اس قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں، رات کی تاریکی اور بھی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اکرم اور آصف کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہیں دیے کیونکہ ان کی جگہ اب بادلوں نے لے لی تھی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے، ماحول میں ایک عجیب وحشت سی چھا گئی، لیکن وہ دونوں چلتے رہے کیونکہ ان دونوں کی منزل بڑی دور تھی، بہت دور۔ انہیں ان قبرستان سے باہر نکلنا تھا، کسی بھی قیمت پر
वो इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। दोस्तों बारिश और भी तेज हो रही थी, साथ ही साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते बारिश के कतरे खून में तब्दील हो गए। लगता कब्रिस्तान को भी इल्म हो गया कि वो दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं, इसलिए कब्रिस्तान भी उनका रास्ता रोकने की कोशिश करने लगा। दोस्तों चलते चलते बड़ी देर हो गई और वो दोनों बहुत आगे आ गए, लेकिन ये कब्रिस्तान तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक एक कब्र फटी, उसमें से एक सफेद जिस्म वाला आदमी बाहर निकला। वो दोनों डरते हुए चल रहे थे और साथ ही साथ दुरूदे पाक भी पढ़ते रहे। फिर कुछ आगे जाकर उन्हें एहसास हुआ उनके सर पर काले कौवे रात के इस अंधेरे में मंडला रहे हैं। उनको अपना आखिरी वक्त दिखाई दे रहा था। अब मामला बहुत हद तक संगीन हो गया था। ऐसा लगता था ये समा बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा। वो भाग जाना चाहते थे। तुम दोनों मौत से कभी नहीं भाग सकते। तुमको लगता था कि इस कब्रिस्तान से भागना इतना आसान है। यहाँ आता इंसान अपनी मर्जी से है, लेकिन वो जाएगा तो हमारी मर्जी से। ये आवाज न जाने कहां से आ रही थी। ये आवाज सुनकर उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। आवाज फिर से आना शुरू हो गई। 21वीं सदी के इंसानों, तुम क्या समझते हो कि जिन भूत कुछ नहीं होते? अगर तुम लोग ये समझते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये आवाजें आना बंद हो गई। बारिश भी थम चुकी थी। माहौल में एक अजीब तरह की वहशत थी, लेकिन अक्सर खामोशी अपने अंदर एक बहुत बड़ा तूफान लिए आती है। भागते भागते अचानक वो दोनों रुक गए। हर तरफ सफेद कफन में बलबूस बदरूहें खड़ी हुई थीं। वो रूहें बड़ी भयानक नजर आ रही थीं। उनके लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। उनके मुंह से खून टपक रहा था। ऊपर आसमान पर काले कौवे मंडला रहे थे। अचानक एक ऊंचे कद वाली रूह आगे बढ़कर उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पीछे आने लगी, मगर वो वहां से भागने लगे। उन लोगों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। बड़े कद वाली बदरू ने आगे बढ़कर आसफ को अपने लंबे हाथों से उठाकर एक कब्र में डाल दिया और कुछ बदरूहें आसफ का खून पीने लगीं। वो चिल्लाता रहा, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी और थोड़ी ही देर में आसफ अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर वो सब गायब हो गए। उस कब्रिस्तान में कोई नहीं था। अकरम आसफ की लाश पर सर रख कर रोने लगा। उसने सर उठाकर देखा तो सामने आसफ जिंदा खड़ा कह के लगा रहा था। उसने एक नजर सामने पड़ी लाश को देखा और एक नजर आसफ की रूह को। ये खौफनाक मंजर देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी और उसे दिल का दौरा पड़ गया और वो भी आसफ की तरह वहीं पर ढेर हो गया। और वो दोनों दोस्त अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे। अगली सुबह गांव वालों को उन दोनों की लाशें कब्रिस्तान के पास मिली। आज तक किसी को पता नहीं चला कि उन दोनों के साथ उस कब्रिस्तान में आखिर क्या हुआ था। दोस्तों अहमद ने अपनी कहानी खत्म की तो मैंने बेयकीनी के साथ उसे देखा और एक सवाल मेरे जहन में बिजली की तरह आया जो मैंने अहमद से पूछा। वो दोनों तो मर गए थे जब किसी को नहीं पता चला कि कब्रिस्तान के अंदर उस अंधेरी रात में क्या हुआ था, तो तुम्हें कैसे पता चला? तो मैंने बैक व्यू मिरर से उन दोनों को देखा। वो आसफ और अकरम ही थे जो हमारी कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। वो दोनों एक बार फिर से हंसने लगे। मैंने अचानक ब्रेक पर पांव रखा, कार एकदम से रुक गई, फिर खामोशी छा गई। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा, वो दोनों मुझे नजर नहीं आए। मैंने तेजी से गर्दन घुमाकर जब पीछे देखा तो दोनों सीटें खाली थीं। मेरे जिस्म से जैसे सारा खून खुश्क हो गया था। मैं हैरत से मुंह खोले उन खाली सीटों को देख रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक लहर सी दौड़ गई। मेरे माथे पर एकदम से पसीना आ गया। फिर हम दोनों ने कार को एकदम से भगाया और हमने अपने घर आकर सांस लिया। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। ये कहानी तब की है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। उन दिनों हम पेपर से फारग होकर छुट्टियां गुजार रहे थे कि एक दिन मेरे तीनों दोस्त नदीम, मुनीर और शमस ने ये प्रोग्राम बनाया कि हाईवे पर चलकर खाना खाते हैं, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और यूं मजा भी आएगा। यूं हफ्ते की रात का प्रोग्राम बन गया। हफ्ते की शाम तक
हम सब ने अपने घर के काम खत्म किए और रात की तैयारी शुरू कर दी। मैंने नदीम को फोन किया, वो भी तैयार था, वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। फिर शमस और मुनीर को फोन करके मैंने उन दोनों से कहा कि जल्दी नदीम के घर पहुँचें, हम वहीं से चलेंगे। मुनीर और शमस अपनी अपनी बाइक पर नदीम के घर पहुँच गए। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी गाड़ी लेकर उनके वहाँ पहुँच गया। उसी गाड़ी में हम चारों लोग रवाना हो गए। क्योंकि नदीम का घर हाईवे के पास ही था, इसलिए हम बड़ी जल्दी ही मशहूर रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। अंदर बड़ा रश था क्योंकि वीकेंड था। बहरहाल हम एक टेबल पर जाकर बैठ गए। हाईवे के पुरसुकून माहौल में खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है। अभी हम इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि वेटर खाना लेकर आ गया। हमने खाना खाया और तकरीबन 2 घंटे रेस्टोरेंट में गुजारे। उसके बाद हम बाहर निकल आए। गाड़ी में वापसी के लिए सफर तय शुरू कर दिया। हमने गाड़ी में बड़ा तेज म्यूजिक चलाया हुआ था। यकायक मेरे जहन में एक बात आई और मैंने आहिस्ता आवाज करके पीछे बैठे नदीम की तरफ देखा और कहा, यार आगे एक इमारत तामीर हो रही है। मैंने सुना है वहाँ कोई भूत रहता है, किसी लड़की की आत्मा रहती है। क्या कहते हो, वहाँ चलें क्या? अबे ये पागल हो गया है। हम यहाँ तफरीह करने आए हैं, मरने नहीं आए। हम में से कोई वहाँ नहीं जाएगा, शमस ने तकरीबन चीखते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही हम तीनों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शमस शुरू से ही बड़ा डरपोक आदमी था, इसी वजह से हम अक्सर उसका मजाक उड़ाते रहते थे। चलो यार चल के देखें, वाकई वहाँ कुछ है या ये लोगों की अड़ाई हुई अफवाह है। मुनीर ने ये बात मुझसे कही। नदीम और मैं बोले, हाँ हाँ चलो चल के देखते हैं, आखिर हम भी भूत से कम है क्या? शमस ने फिर चीखना शुरू कर दिया, तुम लोगों को मरने का शौक है क्या? पागलपन मत दिखाओ, वापस घर चलो। शमस खासा डरा हुआ था। यार तू बड़ा हो जा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। ये सब फैलाई हुई बातें नहीं हैं, बल्कि सच हैं। तेरे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो तब भी तुझे पता चलेगा कि ऐसी वैसी मखलूक होती हैं। शमस गुस्से से बोला। फिर नदीम और शमस में खासी बहस भी हो गई थी, जिसे मैंने और मुनीर ने बड़ी मुश्किल से खत्म करवाया था। ताहम फैसला ये हुआ कि हम वहाँ जाएंगे, ये देखने के वहाँ कुछ है या नहीं। और फिर शमस को चुप होना पड़ा। हम उस वक्त नहीं जानते थे कि हमारा ये फैसला हमें कितनी बड़ी मुश्किल में डाल देगा। खैर मैंने गाड़ी को उस इमारत की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दिया। उस जगह को ढूंढने में हमें कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि जगह जगह उस इमारत की तमीर के हवाले से बोर्ड लगे हुए थे। हम उस इमारत के करीब पहुंचने वाले थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी और दूर से एक छोटी सी लाइट चल रही थी। शायद किसी बिल्डिंग पर कोई टार्च लेकर खड़ा था। यार पागल मत बनो, अभी भी वक्त है, वापस चलो, शमस ने हमें समझाने वाले लहजे में कहा। हमने उसे चुप रहने का इशारा किया और गाड़ी इमारत के ऐन सामने रोक दी। फिर गाड़ी में बैठे बैठे ही हमने बाहर देखना शुरू कर दिया कि अगर कोई चीज हो तो वो हमें नजर आ जाए। शमस मुस्तकिल आयतें पढ़ रहा था और वो पढ़कर हम सब पर दम कर रहा था। फिर गाड़ी दोबारा स्टार्ट करके हम आहिस्ता आहिस्ता और आगे बढ़ने लगे, मगर हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। रात के 2 बज रहे थे। अजीब सी वहशत और होलनाक सन्नाटा था चारों तरफ। थोड़ी थोड़ी देर के बाद किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती थी, जो उस होलनाक सन्नाटे में थोड़ी देर के लिए शोर पैदा कर देती थी। रास्ता बिल्कुल ही कच्चा था। वो बिल्डिंग भी खत्म हो गई थी, मगर रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। बस देखा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब फैलाई हुई झूठी बातें हैं। मैंने पीछे बैठे शमस से कहा। उसने भी सुख का सांस लिया। अब यहाँ से चलो यार, थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं, क्या पता कुछ नजर ही आ जाए। मुनीर बोला। शमस एकदम गुस्से में आ गया और चीखने लगा, मुझे घर छोड़ दो, फिर जहाँ जाना हो चले जाना, जिसको रूह देखनी हो देख ले, लेकिन पहले मुझे मेरे घर पर उतार दो। मेरे समझाने पर शमस खामोश हो गया। अभी हम कुछ दूर ही आगे चले थे कि अचानक नदीम चीखा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको अली। सो मैंने एकदम ब्रेक मारा। अबे तू पागल है, गाड़ी क्यों रुकवाई है? मैंने गुस्से से कहा। यार सामने एक आदमी था, मैंने उसे देखा है।
नदीम क्या तू पागल हो गया है? मुनीर ने झल्लाते हुए कहा, यार मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, यहाँ मैंने एक आदमी को देखा था। देख नदीम, अब तू हमें मत डरा। इस बार शमस ने उसको बोला और नदीम चुप हो गया, मगर उसके चेहरे से परेशानी खत्म नहीं हो रही थी। मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। एक बार फिर हम आगे बढ़ने लगे थे। यकायक गाड़ी एकदम झटके से बंद हो गई थी। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शमस का तो जैसे सांस ही रुक गया था। खौफ से उसके चेहरे पर पसीने आ रहे थे। वो चिल्लाने लगा, आओ यहाँ और मजे करने आओ। मैंने तुम लोगों को कितना मना किया था, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं माने। देख लो, अब लेने के देने पड़ गए हैं। वो बोले जा रहा था, हो सकता है इंजन में कोई मसला हो गया हो, मैं उतर कर देखता हूँ। मैंने गाड़ी से निकलते हुए कहा। मेरे साथ नदीम भी बाहर आ गया। मैंने गाड़ी का बोनट खोला तो इंजन बड़ा गर्म था। गाड़ी के रेडिएटर में हमने पानी डाला और इर्द गिर्द काफी अंधेरा था। हवा का आलम था। ये कब्रिस्तान था। हम एक कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। नदीम ने मेरा कंधा पकड़ते हुए कहा। उसी दौरान मुनीर और शमस भी गाड़ी से नीचे उतर आए। शमस ने कहा, मेरी बात मानो प्लीज मेरे भाई, यहाँ से चलो, मुझे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। ये हम कब्रिस्तान में आ गए हैं, यहाँ पर सिर्फ मुर्दे रहते हैं। मुनीर ने इसे चिढ़ाया, यार वो देख कौन है। अचानक नदीम ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। हम तीनों ने पलट कर देखा तो एक औरत बाल खोले कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। ये अजीब होलनाक मंजर हमारे औसान खता करने के लिए काफी था। यार हो सकता है ये औरत चिल्ला काटने के लिए जा रही हो। मुनीर की इस बात पर हमारी घबराहट में कुछ कमी वाकया हुई। चल यार देखते हैं ये चिल्ला कैसे कटता है। नदीम ने कहा, कोई नहीं जाएगा, अंदर गाड़ी में बैठो, वापस चलो, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो औरत मुझे ठीक नहीं लग रही, शमस ने हमसे कहा, मगर हमने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता हम कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने पलटकर शमस से कहा, तुम भी आ जाओ साथ, मुझे कोई शक नहीं इस तरह मरने का। ठीक है, तुम यहाँ गाड़ी में बैठकर हमारा इंतजार करो, बस हम अभी आए। अभी हमने कब्रिस्तान में कदम रखा ही था कि हमें शदीद बदबू आने लगी। बदबू इतनी शदीद थी कि कुछ और आगे आए थे तो हमने उसे ढूंढा, तो हमने उस औरत को ढूंढा तो अचानक हमारी नजर एक कब्र पर पड़ी। वो औरत वहाँ बैठी कुछ नोच रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हमें ना तो उस औरत की शक्ल नजर आ रही थी और ना ही ये नजर आ रहा था कि वो औरत किस चीज को नोच कर खा रही है। उस दौरान बदबू बढ़ती ही जा रही थी। हम दरख्त के पीछे छुपे बैठे थे। खौफ का ये आलम था कि हम थर थर कांप रहे थे और हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस चीज को इतनी बुरी तरह नोच कर खा रही है। मुनीर ने कहा, यहाँ से भाग चलो, मुझे तो ये इंसान नहीं नजर आती। मगर नदीम जिद करने लगा कि नहीं यार, अब इतना आगे हैं तो और आगे जाकर देखते हैं कि आखिर क्या मामला है। फिर यकायक बादल गरजा, बिजली गूंजी, हमारी नजर उस औरत पर पड़ी तो खौफ से हमारा जिस्म कांपने लगा, दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वो कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल थी जिसका रंग एकदम स्याह हो गया था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी और उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी। दांत भी गंदे और बाहर को निकले हुए थे, जबकि हाथों और मुंह से खून टपक रहा था। हमने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने अपने कदम उठाए तो हमारे पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। बिजली दोबारा चमकी तो एक खौफनाक मंजर हमारे सामने था। ये देखकर हमारी चीखें निकल गई, जिसकी वजह से उसने पलटकर हमें देखा और वो एक जानवर को नोच नोच कर खा रही थी। हमने उल्टे कदमों दौड़ लगा दी। वो औरत चीखती रही, रुक जाओ, मैं मार डालूंगी तुम सबको, वापस आओ। मगर हमने पलटकर नहीं देखा। नदीम किसी चीज से टकराकर गिरा। जो ही उसकी नजर उस चीज पर पड़ी तो वे खोपड़ी थी। नदीम उसको देखकर खौफजदा हो गया। हमने उसे घसीट कर उठाया और दोबारा गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। वो चुड़ैल पीछे से चीखती रही और फिर उसके जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। हम भागते हुए गाड़ी तक पहुँचे। अंदर शमस सो रहा था। हमारे दरवाजे खोलने की आवाज से वो एकदम चौंक उठा। हमसे पूछने लगा कि तुम तीनों की ऐसी हालत क्यों है। हम में से कोई कुछ भी नहीं बोला। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की
मगर नाकाम रहा। नदीम और मुनीर बदहवासी से चीख रहे थे, गाड़ी स्टार्ट कर यार, क्या मसला हो गया है। मुनीर ने चीखते हुए कहा, यार मैं क्या करूं, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मेरे हाथ पांव भी फूल रहे थे। शमस ने जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। हमने भी विरद करने शुरू कर दिए। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की। पहली दफा में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, ताहम 2-3 बार कोशिश करने से गाड़ी झटके से स्टार्ट हो गई। मैंने रेस पर पांव रख दिया। पीछे से मुस्तकिल उस चुड़ैल के हंसने की आवाजें आ रही थीं। मैंने गाड़ी 100 की स्पीड से भी तेज चलाई। पूरे रास्ते शमस हमें बातें सुनाता रहा मगर हम तीनों खामोश थे। हम अपने हवासों में नहीं थे। जो कुछ हमने उस रात देखा था, हम नहीं जानते थे कि कैसे हम उस रात अपने घर पहुंचे। हम में से किसी और में भी घर जाने की हिम्मत नहीं थी। हमने अपने घरों पर फोन करके बता दिया कि हम नदीम के घर ही रुकेंगे। रात हमने ऐसे तैसे करके गुजार दी, लेकिन हमारा दिल ही जानता था कि जब हम चारों एक दूसरे से मिलते हैं तो उस रात का वाकया सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी रूह तक कांप जाती है। यकीन नहीं आता कि हम कैसे उस खतरनाक चुड़ैल से बचने में कामयाब हो गए। ये सब हमारे माँ बाप की दुआओं का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने हमें उस खबीस चुड़ैल से बचा लिया था। यारो, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।